viewers. A speeding unidentified car hit an auto rickshaw and pedestrians near Hanuman Temple. This is an update. A very unfortunate incident where 5 people are injured. A 6-year-old later died during treatment while police carried out the proceedings and have informed the families. We have got those visuals coming in for you. This is the Lucknow hit and run. And you can clearly see that we'll put out those pictures where a speeding car, a vehicle, is moving so fast that it's hitting an auto rickshaw. There you go. There you can see that. You can see how that speeding car is not following any traffic rules whatsoever. And absolutely rash driving can be seen. The car is moving really fast, hitting an auto rickshaw. There you go, hitting an auto rickshaw. Also, 5 people have been injured because there were a lot of pedestrians who were on the roadside when this incident happened. In a very, very unfortunate incident, 6-year-old child has lost their life during the treatment. Police is carrying out the investigation to understand what really happened in this case. So this is the image, the CCTV image that Republic TV is getting for you, so you can yourself see what exactly happened. Speeding unidentified car has hit an auto rickshaw and pedestrians. 6-year-old has died during treatment. Police is carrying out the investigation and has informed the families. This car still is unidentified. Of course, once the investigation begins, more details will come in regarding who was behind the wheels of this vehicle which was speeding. So these are some pictures that we're getting from Lucknow, Uttar Pradesh. A speeding unidentified car hit an auto rickshaw and pedestrians. This is near the Hanuman Temple. And this incident took place on February 12th, leaving 5 people injured. 6-year-old child unfortunately losing their life due to this reckless and rash driving. And these pictures are showing exactly what happened, but a car is just speeding ahead. इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा था यहाँ पर। अगर आप देखें तो अभी भी कई सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। आप यहाँ पर मौजूद थे मौके पर? मौके पे नहीं थे, हम 10 मिनट पहले यहाँ से केवल 5 मिनट हुआ होगा, क्योंकि ये मेरा ही है सब यहाँ पे जो है, तो मैं यहीं बैठता हूँ। लेकिन यहाँ जो है 5 मिनट पहले मैं यहाँ से उठ के गया, बस तुरंत घटना मुझे मालूम पड़ी कि ये हो गया। कार वाले ने जो है अनियंत्रित होकर चढ़ा दिया। तो ये अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि और भी ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर जो हादसा हुआ था, और यहाँ पर तमाम लोग जो है उस वक्त मौजूद थे, और इसी को लेकर लगातार जो चर्चा पर चर्चा चल रही है कि क्या आखिर वो नशे की हालत में नहीं था। इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। क्या नाम है आपका? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, पता मैं था ही नहीं। आप मौजूद थे यहाँ? नहीं, आप मौजूद नहीं थे। सबूत गवाह हम खुद खड़े हैं। आप खड़े थे? सबूत गवाह हम खुद खड़े हैं। ओए हुआ पर वही कार में। क्या नाम है आपका? शिवप्रसाद। आप मौके पर आपने हादसा देखा? हाँ। क्या हुआ था? उधर से गाड़ी लखनऊ साइड से आ रही थी, तो वहाँ एक पहले मोटरसाइकिल में टक्कर मारी उसने। हाँ, गाड़ी इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल बहुत भड़ाम भाई, फिर औरतों में और 2 लड़कों में टक्कर मारी। फिर यहाँ बतासा का ठेला खड़ा था, तो इसमें मारते हुए ऑटो में टक्कर मारी। फिर वो एक लड़का में मारी, उधर जाके ट्रोला में मारता गया वो वहाँ से। क्या वो रुका था या चलता? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका, उसको देख ही नहीं पाया किसी ने। आगे रुका, आगे जाके 100 मीटर पे रुका, एक लड़की को उतारा और फिर भाग गया बैक करके। ये गाड़ी बचते हुए हमने देखा। Okay, we've tried to get that ground report to understand and talk to some eyewitnesses like you were seeing there. Our reporter is trying to ask what did the eyewitnesses see when this very, very reckless incident took place. So just once again putting out those pictures for you. Lucknow hit and run case. This is a speeding unidentified car. You can see the car is rushing ahead, ignoring all sensibility, all traffic rules, rushing ahead. And this led to 5 people being injured. One very young child has died during treatment, and the police is continuing their investigation in this case. The police is saying that the family members of those who are injured have been informed about this tragic
incident that we are seeing. Right on the investigation, we'll be continuing to find out more details about this vehicle. Who does it belong to? Under whose name is it registered? And who was behind that wheel? So those questions will be answered once the investigation into this case starts. We'll try to go across to reporters on the ground in a short while so we understand a little bit more about what is happening on the ground. Okay, let's go to Adarsh, who's joining us on the phone line. Adarsh, what's the latest coming in? क्या अभी ड्राइवर आइडेंटिफाई हुआ है आदर्श? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ड्राइवर को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ड्राइवर का नाम गौरव सिंह बताया जा रहा है जो बख्शी का तालाब लखनऊ का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि वही गाड़ी चला रहा था। उसके साथ साथ एक उसकी महिला साथी जो है वो भी मौजूद थी। इतना ही नहीं, इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज जो देखने को मिल रहा है वो भी बेहद चौंकाने वाला है। रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पर जो चश्तीद मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि आखिर कैसे हादसा हुआ और उसकी तस्वीर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो ये पूरा जो ऑटो है इसको टक्कर मारी गई थी। यहाँ पर ब्लड स्टेन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको ऑटो के पीछे की स्थिति दिखाऊं तो ऐसे 2 से 3 ऑटो जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और ये पलट गए थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वह हादसा है। कार को जो है पुलिस ने पकड़कर पुलिस स्टेशन जो नज़दीक पर मौजूद है वहाँ पर खड़ा किया हुआ है। गौरव सिंह जो है बताया जा रहा है कि 12वीं का छात्र है। वो अपनी महिला मित्र के साथ बहुत तेज रफ्तार में यहाँ पर गुजर रहा था और उसके साथ जब ये हादसा हुआ तो यहाँ से 200 मीटर आगे जाकर उसने गाड़ी छोड़ दी और वहाँ से भाग गया, फरार हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, पुलिस ने उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ पूछताछ चल रही है। इस बात की भी जाँच हो रही है कि क्या वो किसी नशे के इन्फ्लुएंस में तो नहीं था, क्या कोई और बात तो नहीं थी, इसके साथ साथ और क्या कारण रहे थे, इन सब पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। आदर्श, अभी ग्राउंड में क्या चल रहा है? आपने कुछ आई विटनेस से बात की थी, वो आपको क्या बोल रहे हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने जो आई विटनेसेस से बात की थी उनका ये साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर बहुत तेज रफ्तार में वो कार जो है गुजर रही थी। हम कोशिश करते हैं कि अगर आई विटनेस यहाँ पर मौजूद हों तो उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो उन्होंने क्या देखा, क्या कुछ यहाँ पर रहा। और ये मैं आपको बताऊँ तो जो आई विटनेस से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि ये रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी। और अगर मैं गाड़ी के बारे में बताऊं तो गाड़ी जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी और इसके साथ साथ यूपी 78 यानी कानपुर का नंबर था। गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव सिंह बताया जा रहा है जो बख्शी का तालाब का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा जो उसके साथ में मौजूद थी वो उसकी महिला साथी थी। दोनों ने यहाँ से गाड़ी लड़ाने के बाद करीब 200 मीटर तक गाड़ी को खींचा है और जब गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं थी तो फिर वहाँ से छोड़कर उन्होंने वहाँ से वो फरार हुए हैं। लेकिन पुलिस ने आज गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। Okay, अभी तक हम getting these pictures. Adarsh, I'm staying with you. Adarsh is saying that the driver or who was inside the car, there is some identification which has come in of that. Adarsh, अभी पुलिस का ऑफिशियल वर्जन स्टेटमेंट क्या है इस केस पे? देखिए अभी तक जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या बातचीत वो नहीं कर रहे हैं, बच रहे हैं। वो पहले ये कह रहे हैं कि हम मामले की जांच कर लेते हैं, उसके बाद सभी तथ्यों के साथ हम सामने आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पूरे एक्सीडेंट के केस में हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है कि क्या कुछ बातें थी, क्या वो इन्फ्लुएंस में तो नहीं था, उसके साथ और लोग थे वो नहीं मौजूद थे, गाड़ी में क्या कुछ चीज़ें थी उसकी भी फॉरेंसिक जाँच तमाम चीज़ें होनी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ और भी लोग जो उसके साथ मौजूद थे, जिसके खासतौर पर जो महिला साथी की बात की जा रही है उसके साथ भी पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात जो है पुलिस जो अपनी जांच में शामिल करेगी कि गाड़ी के सभी पेपर्स कंप्लीट हैं या नहीं। उसके साथ साथ जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और बना हुआ है तो वैलिड है या नहीं है, इन पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। All right. So Adarsh, you're at the spot. So let's go ahead and if you could show Adarsh एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए हमको, व्यूअर्स को एक बार दिखाइए जो देख रहे हैं कि जो स्पॉट है, एक्सीडेंट स्पॉट है, वहाँ पे कोई डैमेज दिख रहा है आपको और एक टाइमलाइन भी समझाइए।
देखिए बिल्कुल, मैं आपको यहीं से शुरू करता हूँ। ये अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि ये वो कांच के हिस्से हैं जो ऑटो से और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो ऑटो रिक्शास मौजूद थे, उनसे जो टूटकर गिरे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑटो है, इस ऑटो के पर टक्कर लगी है। यहाँ पर ब्लड स्टेन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इस ऑटो की अगर आप स्थिति देखें तो ये तो दूसरी ऑटो थी। जो पहली ऑटो थी बताया जा रहा है कि वो एकदम पूरी तरीके से तबाह हो गई है और ये वो ऑटो पलटने के बाद इसकी ये स्थिति है। यहीं पर एक जो पानी बताशे का ठेला लगा हुआ था वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि ये भी टूट चुका है पूरी तरीके से और इसी के ग्लासेस जो हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जो चश्मदीदों से हमारी बातचीत हुई है उनके मुताबिक करीब 6 से 7 बजे के बीच का ये हादसा है और इस दौरान यहाँ पर तमाम भीड़ होती है क्योंकि ये बहुत एक्टिव रोड है, बिजी रोड है। इस दौरान यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, मार्केट का हिस्सा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसने उसको कंट्रोल नहीं किया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। 7 बजे से 7:30 के आसपास ये पूरा जो हादसा हुआ है, उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर भागा है और यहाँ पर तमाम लोग जो है अगर आप देखें तो बेहद बिजी इलाका है ये और यहाँ पर गाड़ियाँ लगातार कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर की आती जाती the exact spot where the hit and run took place in Lucknow, and you can see some of the pictures coming in. The vehicle is looking in a very bad condition, and like Adarsh told us that the driver behind the wheel has been identified. The investigation is continuing. I will be making sure that our viewers get the latest updates as investigation reveals much more. Taking a short break, viewers. We will be right back. Much more.